Hello everyone, welcome to this tutorial. This is the second part of our grand tutorial. So in the first part we've covered limits and continuity. Now we start with differentiability and derivatives. Okay, so we'll start with the introduction of the derivatives. So what is the derivative? Okay, so we'll first see graphically what is a derivative, what is meant by a derivative of a function at a point. So if we are given okay, so if we have a graph, so let me draw a function. Let's say we have a graph of this function. So this is a function, we can write it as y is equals to f of x. And I want to find the derivative of this graph, let's say at a particular point a. Okay, so what is meant by the derivative of this function at this particular point a? So for this point we have the value is here corresponding to, so this is f of a. Okay, so we also know that for each point on a curve we can draw a tangent line if the curve is continuous. So there does exist a tangent line. Tangent line is always a straight line that touches that curve only at that particular point. Okay, so we have this tangent line, the green line is the tangent line. Okay, now the derivative of this function f of x at this particular point a will give you the slope of this tangent line. Okay, so derivative of function f of x at point a is the slope of the tangent line at that point. Okay, so it means okay, so this tangent line will have some, so this tangent line, so this tangent line is a straight line. So every straight line has the equation y is equals to mx plus c, and this m is the slope. Okay, so if you want to equate this thing, so the derivative we denote it as f prime of x for any function. And so in particular we have at a, so f prime of a is actually m. So the value of the function's derivative at the particular point a is the slope m. Okay, so graphically I hope it is clear that at any point of a function, the derivative at that point will give you the slope of the tangent line at that point. Okay, so derivative is basically the gradient. Okay, so now if you want to see numerically, numerically is basically we can say, okay, so if we look at the tangent line, okay, forget about the graph at the moment. Let's see, let's say that f of a is a point, and let's say this is another point on the line, on the green line, which is the tangent line. And let's say corresponding to this point we have another point here, we call it b, or let's call it x, and this becomes not f of x, but let's say this becomes corresponding to x, maybe this will become, okay, so I will just write capital X. This is small x, this is capital X. Okay, now if you have a straight line, then what is the slope of a straight line? So we have the formula for the slope of a straight line. Slope, it gives you okay, so change in y, x minus f of a divided by change in x. Okay, now if I start, if I take a limit, by limit I means if I start if I start moving this x towards a, then basically this x will start moving towards this thing, and we will eventually have
a kind of slope. But anyways, so this slope is completely related with the definition of the derivative. So instead of doing this thing like this, we will directly write the definition, and we will try to solve the questions using the definition of the derivative. Okay, so definition of the derivative is here. So since we know that average rate of change of any function gives, we can find it as f of x minus f of a divided by x minus a. So what we did, we just replace this x minus a here with h, and we move h towards this side, a towards this side, then we have x equals to a plus h. So this x becomes a plus h, this a remains a, and this x minus a becomes h. Okay, so these two are equivalent forms, both are equivalents, and we both are the slopes. Okay, now instantaneous change, for instantaneous change, what will we do? We will just take the limit, because the derivative is basically instantaneous rate of change. Okay, so we'll take the limit and we'll approach this h towards 0. Okay, so this limit is the derivative of this function at point a, or this is also an equivalent form. So this is the definition of the derivative of a function f of x at point a. So if you want to find the derivative of a function at a particular point a, you will just need to evaluate this limit. Okay, so using this definition, we will solve this question. We need to find the derivative of the function f of x equals to 5x minus 8 square root, and we will find the derivative using the definition. Okay, so I know most of the people, you people do know about the power rules and other rules, but these rules are derived so after this definition of the derivative. So everything, all of the rules are derived using the definition of the derivative. So if in the question you have been asked to find the derivative using the definition, so you have to find the limit. Okay, so we'll start with this question. F of x equals to 5x minus 8 square root, and we will apply this derivative, this definition. Okay, so we'll start with, so f prime of x equals to f of x plus h minus f of x. Okay, instead of a, because I'm not evaluating it at a particular point a, I'm evaluating it in at a general variable x. So instead of a, I'm writing it x here, and we have h here and h here. Okay, so this is the definition of the limit. नाउ आई जस्ट एवेलुएट द फंक्शन. सो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं x प्लस एच लिख दूंगा, तो मेरा 5 इंटू एक्स प्लस एच बन गया, माइनस 8 स्क्वेयर रूट माइनस दिस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया, एंड देन डिवाइडेड बाई एच आ गया. ओके, नाउ मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स प्लस 5x प्लस 5h माइनस 8 माइनस दिस थिंग. अब यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन बन गया ओनली. सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट एवेलुएटिंग द लिमिट. ओके, सो यहाँ पे सो वी स्टडीड 3 मेथड्स. एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था व्हेन द लिमिट पॉइंट इज़ इनसाइड द डोमेन, and secondly, if limit point is not inside the domain, then we'll apply the factorization, and thirdly conjugation. तो factorization भी possible नहीं है, so we'll apply the conjugation. So we'll apply the conjugation. हमने conjugate से multiply और divide कर दिया, इसको further solve किया, simplify किए. तो conjugation मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वेयर माइनस इसका स्क्वेयर बन जाएगा नीचे वाले पार्ट में, और स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो 5x प्लस 5h माइनस 8 एक साइड पे, माइनस 5x माइनस 8 दूसरी साइड पे आ गया, और नीचे h और ये पूरे का पूरा फैक्टराइज मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ पे 5x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 8 जो है यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 5h रह जाएगा, और फिर h और h अगले स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे. तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ गया. अब 5 डिवाइड बाई दिस होल एक्सप्रेशन, अब आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो h वाली टर्म सारी जीरो हो जाएंगी. तो वी हैव 5 डिवाइड बाई 5x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 8. तो सेम टर्म 2 दफ़ा आ रही है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ आवर फंक्शन, और ये हमने फाइंड किया यूजिंग द डेफिनेशन. आगे ओके, दिस PDF इज़ ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप जो है इसको चेक भी कर सकते हैं. और देयर इज़ अनदर एग्जांपल जो कि फुल डिटेल के साथ सॉल्व की हुई है. यू कैन लुक एट द डेफिनेशन, सो यू कैन लुक एट दिस सोल्यूशन. अगर आपको समझना है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 4, और इसको आप भी डेरिवेटिव डेफिनेशन यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड आउट किया गया. तो इसको देख लीजिएगा, अगर आपको समझना है तो वी कैन डिस्कस इट. ओके, सो डेरिवेटिव, फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई है. ओके, सेकेंडली, ओके, देयर इज़ आल्सो अनदर नाइस एग्जांपल दैट यू कैन ट्राई टू फाइंड इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ओके,
Okay, so leave it. We already discussed a lot of examples. Okay, so you can also check in the Stewart's book exercises. So you will find a lot of examples there as well, and also exercises there. Okay, so we'll move on from the definition. So now we'll discuss some of the rules of the derivatives. अगर आपको क्वेश्चन में स्टेट ना हो, एक्सप्लिसिटली स्टेट ना हो कि आप डेफिनेशन यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड करें, तो यू कैन अप्लाई एनी रूल दैट यू रिमेंबर, और it will save a lot of time for you. Okay, okay, so the first and important rule is the power rule. अगर आपके पास वेरिएबल है x रेज टू पावर n, यानी कि कोई वेरिएबल x है, उसकी कोई इंटीजर पावर है n, ओके, और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये इंटीजर पावर जो है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इंटीजर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो इंटीजर पावर n थी वो साथ में मल्टीप्लाई होगी और उसी पावर में से एक कम हो गया. ओके, ओके, आल्सो यहाँ पे कुछ और भी डेरिवेटिव के जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे हमने लिमिट्स पे देखे थे कि लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर, लिमिट्स जो है वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे. और वहाँ पे हम डिस्कस करते हुए हमने ये बात डिस्कस की थी कि लिमिट मल्टीप्लिकेशन पे और उस पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. लिमिट एक्स अप्रोचेस एनी नंबर ए, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. लिमिट तो डिस्ट्रीब्यूट होता है बट डेरिवेटिव डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट. तो अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ जी है तो इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगता है, जो भी हम आगे जाके देखते हैं. ओके, और सिमिलरली अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ डिवाइड बाई जी है तो इसके लिए भी हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम क्वोशंट रूल कहते हैं, वो भी अभी हम आगे जाके देखते हैं. बट अभी के लिए आपको ये याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि डेरिवेटिव भी लिमिट की तरह एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ प्लस जी है तो ये आपके पास इक्वल होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सिमिलरली माइनस वाले केस में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है y का ये y का फंक्शन है तो हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है. तो सबसे पहला काम, बिकॉज ऊपर हमारे पास पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल है, तो हम क्योंकि नीचे सिंगल एक मोनोमियल है तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे. y 5 डिवाइड बाई वाई क्यूब, 5y क्यूब डिवाइड बाई वाई क्यूब एंड 2y डिवाइड बाई वाई क्यूब. यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 रह जाएगी, यहाँ पे वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर से कैंसिल होकर नीचे 2 रह जाएगी. ओके, तो वी हैव दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट. उसके बाद आपके पास फंक्शन ये बन गया, पावर ये 2 नीचे प्लस है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया. नाउ विल टेक द डेरिवेटिव अप्लाइंग द पावर रूल. अब इस पे पावर रूल लग जाएगा. ओके, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लिए तो इस सब पे डेरिवेटिव आ रहा है डी ओवर डी वाई, और उसके बाद फिर जो है वो सेपरेट हो रहा है, पहले इस पे फिर इस पे और फिर इस पे, फिर तीनों पे अलग अलग लग जाएगा. राइट, ओके. तो इफ़ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर, तो पावर रूल से 2 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 2 में से एक कम. यहाँ पे कांस्टेंट है और ये आपने याद रखना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा. तो ये 5 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है. अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे और सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, और -2 में से एक कम करेंगे तो वो -3 हो जाएगा. ठीक है, ये ज़ीरो हो गया. यहाँ से ये 2y -4y क्यूब आ गया. तो इसको फर्दर देखें तो आपके पास सब सिंप्लीफाई करें तो ये सोल्यूशन बन जाएगा. ओके, सिमिलरली दिस इज़ अनदर एग्जांपल पावर रूल की, जो कि काफ़ी आसान है, बट सब जस्ट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है. अगेन, तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाय दिस थिंग. तो अगर किसी भी पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन गिवन है तो आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज इन पोजीशन पर टाइम है. राइट, तो हम वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इसकी डी एस ओवर डी टी होगी, चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हमारे पास वेलोसिटी होगी. तो हमने वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. डेरिवेटिव ले लिया, पावर रूल लगा के सबको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया, वी ऑफ टी. ओके, इस पीडीएफ को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा. पावर रूल इसमें अप्लाई किया हुआ है सिंपली, कि अगर आपके पास यहाँ पे T4 था, 3 इंटू T4 था, तो 3 के साथ जो है वो 4 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और t की पावर एक कम हो जाएगी 3. -40 वाले केस में 3
टी स्क्वेयर आ जाएगा डेरिवेटिव में, प्लस 126 वाले केस में टी स्क्वेयर है तो 2t आ जाएगा, और -9 वाले केस में ये वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 1 कम, 40 के साथ 3 मल्टीप्लाई पावर 1 कम, 126 के साथ 2 मल्टीप्लाई पावर 1 कम, और ये लास्ट वाला 0। ओके, तो इसको फर्दर बस सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि इन सब में टी कॉमन आ रहा था, टी भी कॉमन आ रहा था और 12 भी कॉमन आ रहा था, तो वो 12 और टी बाहर लिख दिया और अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आपने फैक्टराइज करके इसको फैक्टर्ड फॉर्म में लिख दिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि डज द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप मूविंग। तो ऑब्जेक्ट कब स्टॉप मूविंग, मूव करना रुकेगा, जब उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा, यानी कि जब उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, चेंज इन द डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगा, यानी जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट मूव करना रुक जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव को इक्वल्स टू ज़ीरो रखते हैं। जब डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से आपके पास टी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि टाइम की वैल्यूज़ आ जाएंगी जिन टाइम पे आपके पास डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होगा। तो टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे ज़ीरो, t-7 पे ज़ीरो, t-3 पे ज़ीरो, ये रूट्स हमने बेसिकली हम रूट्स निकाल रहे हैं। तो जब टाइम ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो ऑब्वियसली, जब टाइम 7 होगा तो वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी, और जब टाइम 3 होगा तो फिर भी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ओके, सो प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वोशंट रूल एंड पावर रूल क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल आ जाता है। ओके, सो प्रोडक्ट रूल मैं आपको लिख देता हूँ। यूजुअली प्रोडक्ट रूल आपके पास जब दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों एक्स के फंक्शंस हों, तो आप क्या करते हैं कि डी एफ यानी कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टाइम्स दूसरा फंक्शन एज इट मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो डी ओवर डी एक्स ऑफ जो दूसरा फंक्शन है उसको और साथ में एफ़ को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन एज इट इज़ या पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज़। ठीक है, आप इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको इसी वे में लिखें तो जस्ट आपके पास आसानी रहेगी। सेकेंडली आपके पास है डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ डिवाइडेड बाय जी। क्वेश्चन का ये आपके पास ज़रा मुश्किल होता है, आपको बस सिंपली याद रखना पड़ता है कि आप इसमें नीचे वाले का जो है वो स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसका आप स्क्वायर लेते हैं, और उसके बाद जो है इसका स्क्वायर लेने के बाद आप ऊपर जो है वो प्रोडक्ट रूल वाली फॉर्म में ही चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। लेकिन अब इसमें आप सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन एफ था। उसके बाद माइनस साइन आएगा, प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आता है, इसमें माइनस साइन आता है। ठीक है, उसके बाद आपने अभी जिसका डेरिवेटिव लिया है अब उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और जो बाकी बच गया उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ओके, सो दिस इज़ क्वोशंट रूल। तो ये यूज़ होंगे जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उनका डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो आपने उनका डेरिवेटिव लेना है तो हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। ओके ओके, अब क्वेश्चन है कि आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देयर आर टू वेज। एक कि आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी जिसमें आप पावर लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंडली आप इसको कंसीडर करें दो फंक्शन, इसको पहला फंक्शन कर लें, या इसको मैं एफ़ कह देता हूँ और इसको मैं दूसरा फंक्शन जी कह देता हूँ, और फिर उसके बाद इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूँ जो अभी इस क्वेश्चन में किया हुआ है। ओके, तो प्रोडक्ट रूल में अगर इसको मैं एफ़ कहता हूँ तो और इसको मैं जी कहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जी का डेरिवेटिव लिया है और एफ़ का मैंने डेरिवेटिव लिया और जी को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। फिर प्लस साइन फार्मूले वाला, फिर इसको पहले वाले एफ़ को एज इट इज़ छोड़ दिया और जी का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। ओके, अब इसको फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास कांस्टेंट का ज़ीरो आ गया, और इस पे पावर लग गया 3/2 मल्टीप्लाई और पावर में से एक कम। इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, और इस पे फिर से पावर रूल, यहाँ पे एक्स क्यूब पे पावर लग जाएगा -3 मल्टीप्लाई और पावर से एक कम। यहाँ पे -2 है, उसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/3 की पावर में से एक कम। उसके बाद आगे फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन ही है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें या इसको यहीं पे छोड़ दें, दैट्स फाइन। और देन वी हैव कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और इसको हमने डेरिवेटिव लेना है तो विल अप्लाई द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में अगेन नीचे वाला जो फंक्शन है उसको हमने स्क्वायर कर दिए, ठीक है, और फिर नीचे वाला फंक्शन जो है उसको एज इट इज़ छोड़ दिया और ऊपर वाले फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव ले लिया, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ छोड़ दिए और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ओके, सो और बीच में आपके पास नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो ये चीज़ें, ये आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फिंगर टिप्स से फार्मूलाज हो जाएंगे, तो यू कैन डायरेक्टली
फाइंड द डेरिवेटिव्स विदाउट बॉदरिंग कि आपको फार्मूला जो है वो मतलब किस तरह से, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो इट्स फाइन, अगर नहीं भी करेंगे तो फिर भी ओके, बट दिस इज़ एक्चुअली द मेन आइडिया कि डेरिवेटिव आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिस इज़ अगेन क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट रूल, बट लेट्स से अब आपको वैल्यूज़ गिवन है डिफरेंट फंक्शन की वैल्यूज भी 2 पे गिवन है, उसके डेरिवेटिव भी 2 पे गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है, उसके डेरिवेटिव भी 2 पे गिवन है, और एफ मल्टीप्लाई जी का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो अगर ओके, सो दिस इज़ अनदर वे टू राइट द डेरिवेटिव। एफ जी प्राइम का मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। ओके, तो प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर देंगे। प्राइम का मतलब पहला फंक्शन उसको ऐसे लिख देंगे, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस दूसरा ऐसे लिख देंगे, पहले का डेरिवेटिव लिख देंगे। इसको आप इस फॉर्म में लिख दें फिर भी ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पहले एफ़ का डेरिवेटिव ले लिए और जी को ऐसे छोड़ दिया और फिर एफ़ और जी को डेरिवेटिव, तो इन्होंने अदर वे अराउंड किया, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया था और इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया था, और बीच में चूँकि प्लस साइन है तो हम इसको किसी वे में भी लिख सकते हैं। ओके, हमने इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया और उसके बाद हमने सिंपल वैल्यू पुट कर दी एफ़ प्राइम की, जी ऑफ 2 की, और फिर एफ़ की, और फिर जी प्राइम की। ओके, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आपका डेरिवेटिव होगा एफ जी प्राइम एट पर्टिकुलर वैल्यू 2। ओके, तो कि आपको अगेन गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब टाइम्स जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ -7 गिवन है 2, जी प्राइम ऑफ -7 गिवन है -9, और आपने सिंपली फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ -7। ओके ओके, और इस चीज़ में आप अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें पावर रूल अप्लाई कर इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि आप एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। इस पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इस साइड पे जो है वो आपके पास क्वोशंट रूल लग जाएगा, और इस साइड के डेरिवेटिव वैसे ही आपके पास 3x² आ जाएगा। इन दोनों को बराबर कर देंगे, इसमें जो जो वैल्यूज़ आपको नोन है वो वैल्यू पुट कर देंगे, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप इसमें से निकाल लेंगे। ओके, बट एनीवेज हम इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। इसको आप एक फंक्शन कंसीडर करें और इसको आप दूसरा फंक्शन कंसीडर करें, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़, और फिर दूसरा पहला एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास नॉन वैल्यूज़ क्या हैं, जी ऑफ -7 ये नॉन है, और जी प्राइम ऑफ -7 और जी ऑफ -7 ये दोनों नॉन है। हमने एफ प्राइम ऑफ -7 फाइंड करना है, लेकिन हम यहाँ से एफ ऑफ 7 फाइंड कर सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ -7 फाइंड कर सकते हैं, वो इक्वल होगा -7 क्यूब एंड जी ऑफ -7, और जी ऑफ -7 की वैल्यू हम यहाँ से लगा देंगे, 2 के इक्वल है, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देंगे -21 और 63 आ जाएगा शायद टाइम्स 2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ओके, या नॉट 63 20, बट एनीवेज जो भी आंसर होगा आप उसको देख लेंगे। आई थिंक इट इज़ ओके, सो इट्स 343, 7 cube is 343, yes, 7 sevens are 49 and 49 sevens are 343। ओके, सो हमने प्रोडक्ट को अप्लाई किया है, एक्स क्यूब जो है वो 3x² और जी ऑफ एक्स को एज इट इज़ छोड़ दिया, यानी कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़, फिर पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव। ओके, वैल्यूज़ पुट कर दिए। एफ प्राइम ऑफ -7 फाइंड करना था, तो जी 3 इंटू -7² और जी ऑफ -7 फिर -7 का क्यूब, जी प्राइम ऑफ -7, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको यहाँ पे इंसर्ट कर दिए तो हमारे पास ये आंसर आ गया आपके पास एफ प्राइम ऑफ -7 का। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वोशंट रूल का। हमारे पास एक ऊपर जो है हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, नीचे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास हैं, डेरिवेटिव ऑफ जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इक्वल आता है कॉज ऑफ एक्स के, और कॉज ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इक्वल आता है माइनस साइन ऑफ एक्स के। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ द साइन फंक्शन
इज़ कॉज ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ फंक्शन इज़ माइनस साइन ऑफ एक्स। एंड बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके डेरिवेटिव्स आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो tan का डेरिवेटिव होगा, tan ऑफ एक्स, वो आपके पास असल में इक्वल होगा साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कोशेंट रूल, क्योंकि दो फंक्शन से डिवाइड हो रहे हैं तो आप इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ बेसिकली 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स। तो दिस इज़ अगेन कोशेंट रूल वाला क्वेश्चन। और सिमिलरली सीकेंड और फिर हमारे पास कोसिकेंट विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स, ये भी हमारे पास है। और फिर उसके बाद लास्टली हमारे पास कॉट ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स। तो आपको सिर्फ अगर इन दो के पता हो, साइन का और कॉज का, तो बाकी जितने भी हैं वो आपके पास से डेरिवेटिव के रूल से आ जाते हैं। आप इन पे प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल, जो चारों पे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव्स यहाँ से निकल आएंगे। ओके, तो जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें है वो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कॉज है और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एच ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 साइन टी माइनस 4 कॉस टी। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, चूँकि ये क्वेश्चन में आ रहा है कॉन्स्टेंट फंक्शन डिवाइड बाय सम अदर फंक्शन, तो इस पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। ओके, अब क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करेंगे? नीचे वाला फंक्शन उसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला फंक्शन जो है वो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और फिर जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे, फिर माइनस साइन आ गया। ऊपर वाला फंक्शन उसको एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है। अब इसमें चूंकि हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ रहा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो ये सारी की सारी टर्म्स ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सारी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, बाकी हमारे पास -1 और फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 साइन टी माइनस 4 कॉस टी। डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और -4 एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ओके, अब हमारे पास -2 इंटू 2 कॉस टी, ये एज इट इज़, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस साइन 4 साइन टी। ओके, तो इस माइनस को चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दें या इसको यहीं पे छोड़ दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा, या अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ आल्सो द सेम थिंग। तो ये आपका आंसर है डेरिवेटिव का। सिमिलरली देयर इज़ अनदर एग्जांपल। आप के पास अगेन क्वोशिएंट टूल है, अब इसमें एक्स अपीयर हो रहा है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपीयर हो रहे हैं, तो प्रोसेस सेम है। जस्ट आपका डेरिवेटिव जहाँ पे भी डेरिवेटिव आएगा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। tan का जब आप फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर आता है, तो उस पर आप जो है वो एक दफ़ा tan का डेरिवेटिव फाइंड कर लें विच इज़ इक्वल टू साइन ओवर कॉज। तो इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद जो है यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट। तो आपके पास tan x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब tan का डेरिवेटिव लिया तो हमने सीकेंड स्क्वायर पुट कर दिया, और जब x का डेरिवेटिव लिया तो उसकी जगह पे 1 आ गया था। सिमिलरली कोसिकेंड का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स है। तो क्वोशिएंट रूल में अगेन नीचे वाला का स्क्वायर, ये नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाली का डेरिवेटिव। ओके, और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मॉक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू tan ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो ये मॉक एग्ज़ाम का क्वेश्चन था। इसमें आपने क्या करना है, आप इसको डायरेक्टली फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बाय मे बी अप्लाइंग द क्वोशिएंट टूल, लेकिन अब इसमें फ़िलहाल के लिए लिमिट का क्वेश्चन है। ओके सॉरी, सो दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ लिमिट, डेरिवेटिव नहीं है, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ लिमिट। ओके, तो मॉक एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, इसलिए डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चन के बाद मैंने ये भी इसमें ही डाल दिया था ताकि मॉक एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से, तो इसलिए इसको डाला गया यहाँ पे। ओके, और बाय द वे मॉक एग्ज़ाम से पहले मैंने ये क्वेश्चन ट्यूटोरियल में करवा दिया था। एनीवेज,
सो वी नीड टू फाइंड द लिमिट, और चूंकि आप इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते तो 2 - 2 जो है इज़ ज़ीरो, और ऊपर भी tan 0 जो है वो आपके पास ज़ीरो होता है, तो 0/0 इज़ 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसमें लेट्स से पुट कर रहे हैं कि x - 2 जो नीचे वाली टर्म है x - 2, उसको मैं h पुट कर रहा हूँ, और जब मेरा x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, तो जो मेरा h होगा, जब x 2 को अप्रोच करेगा तो मेरा h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट्स मेरी चेंज हो जाएंगी, और जहाँ पे इनपुट्स हैं वो मेरी चेंज हो जाएंगी, और जो x होगा वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा h+2 के, ये 2 इधर आगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने h+2 पुट कर दिया, जहाँ पे x - 2 था वहाँ पे हमने h पुट कर दिया, और जहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 2 को वहाँ पे हमने h अप्रोच करवा दिया 0 को। अब ये थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो बन गया पाई एच मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई, तो 2 पाई प्लस पाई एच बन गया एक चीज़, और लिमिट हमारी x अप्रोचेस 2 से चेंज होगी h अप्रोचेस 0 पे। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि जो साइन और कॉज का पीरियड होता है, पीरियड मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है, और ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में प्री कैल में पढ़ा था। तो साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, यानी कि 2 पाई के बाद उसमें कोई भी जो वैल्यू देंगे वो वही वैल्यू होगी जो इनिशियली उस पर होगी। सिमिलरली कॉज का भी यही है, 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। टेन का जो पीरियड है वो है पाई, टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाई यूज़ हो रहा है टेन में, तो 2 पाई जो है एक तरह से 2 दफ़ा वो सर्कुलर ले रहा है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह कर सकते हैं, पाई प्लस पाई एच, तो एक दफ़ा पाई प्लस पाई एच, ये पाई ख़त्म हो जाएगा, आपके पास पाई प्लस पाई एच रह जाएगा टेन, और फिर दूसरी दफ़ा फिर से इस पर पीरियड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये पाई भी वैनिश हो जाएगा, आपके पास सिंपल पाई एच बाकी रह जाएगा। तो 2 पाई पे साइन और कॉज एक कंप्लीट रोटेशन लेते हैं, साइन जो है वो 2 पाई पे 2 रोटेशन लेते हैं, तो 2 रोटेशन के बाद भी आंसर जो है वो यही होगा, तो 2 पाई प्लस पाई एच इज अगेन इक्वल्स टू पाई एच, तो हमने ये प्रॉपर्टी इस पर लगा दी। तो टेन एच अप्रोच 0, टेन पाई एच डिवाइड बाई एच, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब टेन की डेफिनेशन लगा दी, टेन इज इक्वल्स टू साइन ओवर कॉज, तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉज है, साइन ओवर कॉज आ गया, डिवाइड बाई एच ये वाला आ गया, और इसके बाद हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया कि हमने कॉज को वन ओवर में था तो इसको हमने अलग लिख दिया, और साइन को हमने अलग लिख दिया, लिमिट एच अप्रोच 0 साइन पाई एच ओवर एच इसको, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर कॉज पाई एच से। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने कहा था लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो लिमिट मैंने दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दी, यहाँ पे साइन पाई एच ओवर एच पे आ गई, और यहाँ पे 1 ओवर कॉज पाई एच पे आ गई लिमिट। ओके ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की लिमिट्स की, कि अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को, साइन एक्स ओवर एक्स, इसका जो आंसर होता है वो हमेशा 1 होता है। दिस इज़, इसके पीछे एक प्रूफ है काफ़ी, लेकिन वो प्रूफ जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट आपको जस्ट ये याद होना चाहिए कि साइन एक्स ओवर एक्स का 0 पे लिमिट जो है वो 1 होती है, और लिमिट एक्स अप्रोच 0 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसकी लिमिट 0 होती है और उसकी लिमिट 1 होती है। ओके, सो दीज आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला शीट में गिवन नहीं होंगी, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ पे आपके पास जो आर्गूमेंट में था वही नीचे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आपके पास आर्गूमेंट में पाई एच है, नीचे आपके पास एच है, तो हम इस पे फार्मूला तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब यहाँ पे आपके पास पाई एच ना होगा। अब चूंकि पाई एक कांस्टेंट है तो हम पाई से मल्टीप्लाई और पाई से ही डिवाइड करके अपना रिक्वायर्ड फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर दिए, उसके बाद ये जो सारी की सारी लिमिट है वो इस फार्मूले के तहत जो है वो 1 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos 0, तो cos 0 1 होता है, तो दिस होल थिंग इज़ 1, तो 1 ओवर 1 इज़ 1, तो 1 मल्टीप्लाई विद पाई मल्टीप्लाई विद 1, तो आपके पास जो लिमिट का आंसर है वो पाई आ गया था। ओके ओके, तो समरी में हमारे पास पावर रूल, कांस्टेंट मल्टीपल्स के अगर आपके पास फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आप जो है फंक्शन का ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द कांस्टेंट मल्टीपल। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल,
और देन फिर अभी जो है वो हम चेन रूल कर देखते हैं और डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी मैंने आपको वो बता दिए ऑलरेडी साइन और कॉस के, तो ये आपके समहाउ कुछ हद तक हो चुके हैं, बट चेन रूल जो है दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू सी। ओके ओके, सो वी आर गिवन विद सम क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले मैं आपको चेन रूल के बारे में बता दूं कि चेन रूल होता क्या है किसी भी उसका। ओके चेन रूल आपके पास अप्लाई होता है जब दो फंक्शन जो हैं वो कंपोज हो रहे होते हैं। आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पता होनी चाहिए। जब दो फंक्शन कंपोज हो रहे हो और आपने उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो दो फंक्शन कंपोजिशन का डेरिवेटिव आपने लेना हो, तो फंक्शन आपके पास किस तरह से, ओके कंपोजिशन एवेलुएट किस तरह से होती है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि अगर एफ कंपोज जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वो इस तरह से वैल्यूएट होगा। पहले जी ऑफ एक्स वैल्यूएट होगा, फिर जी ऑफ एक्स को हम एफ के अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर हम उसको वैल्यूएट करेंगे। ओके, अब हमारे पास कंपोजिशन इसकी इक्वल है, ठीक है। तो हमें अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि पहले आप जी ऑफ एक्स वैल्यूएट करें उसको एफ, और एफ जो फंक्शन होगा उसका पहले अलग से डेरिवेटिव ले लें, फिर उसमें प्लग इन कर दें जी ऑफ एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई कर दें जी प्राइम ऑफ एक्स से। ओके, तो एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स, तो ये दो चीज़ें आपने आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, एग्जांपल के तौर पे आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x², ठीक है। अब दिस इज़ अ फंक्शन और ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। कैसे, इसको आप लिख सकते हैं ये 2x² जो है इसको आप लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये इस तरह से आपका फंक्शन बन जाएगा। अब अगर आपने एफ़ का डेरिवेटिव लेना होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आपने साइन का डेरिवेटिव लेना है। ओके ओके, सो अब इसको आप सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, पहले आपने लिखना है अपना मतलूबा फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स जो है विच इज़ इक्वल टू 2x², ठीक है। अब उसके बाद आपने डेरिवेटिव ले लेना है एफ़ प्राइम का, एफ़ का डेरिवेटिव विच इज़ साइन का डेरिवेटिव इज़ कॉज ऑफ एक्स, और जी का डेरिवेटिव भी ले लेना है विच इज़ इक्वल टू 2, और साथ में x² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x। ओके, सो चेन रूल में आपका टास्क क्या होता है, पहले आपने एफ फंक्शन इसमें से आइडेंटिफाई करना है, फिर जी फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जब एफ़ और जी आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको आपने सेपरेटली ऐसे लिख देना है, और फिर उसका डेरिवेटिव ले लेना है, एफ़ का डेरिवेटिव और फिर जी का डेरिवेटिव। ओके, जब आपने ये लिख दिया तो फिर आपने फार्मूला लगा देना है कि एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ, सॉरी आप नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको वैसे ही नाम ही लगा दिए। तो जो इनका जो डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स का, ओके लेट मी चेंज द नेम ताकि वो एस एफ के साथ, ओके मैं इस एफ को ही चेंज कर देता हूँ। सो लेट्स से दिस इज़ एच ऑफ एक्स, दिस इज़ एच ऑफ एक्स, और फिर हमने एफ और जी आइडेंटिफाई कर दिए। तो एच प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास उस चेन रूल के फार्मूले से किसकी इक्वल होगा, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स। ओके, अब अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स कॉज की इक्वल है इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा, कॉज ऑफ ये 2x²। okay, so we'll just plug in the values here. So f prime of g of x is cos of 2x² times g prime of x is 4 of x. So derivative of our function is 4x times cos of 2x². Okay, so this is a chain rule. So chain rule में you first need to identify 3 steps हैं. You first need to identify the composition, और आइडेंटिफाई द कंपोजिशन से मेरा मतलब है कि आपने एफ ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है और जी ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है, जिसको कंपोज करें तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन बनता है,
ठीक है, जिसको कंपोज करें तो आपका जो है वो रिक्वायर्ड फंक्शन जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो बनता है। तो इट मीन्स आपने एफ और जी आइडेंटिफाई कर लिए। तो यू विल आइडेंटिफाई द कंपोजिशन, यू विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द जो भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं फंक्शंस, डेरिवेटिव फाइंड करें और फिर उसमें फार्मूले में अप्लाई कर दें। लेट्स से हमारा फंक्शन जो है वो एच ऑफ एक्स था, तो आपका जो भी आपका फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपके पास इस फार्मूले में आप अप्लाई कर देंगे, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स। ओके, सो ये 3 स्टेप्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है और आप चेन रूल जो है वो उसको ईजीली कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके ओके, सो चेन रूल्स ऑल्सो ईजी, बस आपको बस फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं देख देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट में आपने पहले आइडेंटिफाई करने इफ़ और लेट्स से अब यहाँ पे अगर जी आंसर जी क्वेश्चन फंक्शन का फंक्शन जी की फॉर्म में गिवन है, तो हम लेट्स से एफ और हमने एफ ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है और जी को छोड़ देते हैं, लेट्स से हमने के ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है। और ये इस तरह की होनी चाहिए कि हमारा एफ कंपोज के जो है वो इक्वल आ जाए जी के। ठीक है, ओके, तो एक फंक्शन तो हमारा जो है वो जो पहला फंक्शन है जिसको मैं के ऑफ एक्स कह रहा हूँ वो हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन ये है और फिर दूसरा फंक्शन उसकी पावर को -2 कर रहा है। तो एक फंक्शन हमारे पास है 4t² - 3t+2, और जो एफ फंक्शन है वो जो भी इनपुट है उसकी पावर को -2 कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टी कर दूँ तो इस तरह से उसको ले चलते हैं। ओके, अब आप इसको देख सकते हैं कि इफ़ कंपोज के ऑफ एक्स इज़ एक्चुअली एफ ऑफ के ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ के ऑफ एक्स इज़ 4x² - 3x+2। अब f जो है अब इनपुट में ये है तो f उसकी पावर को -2 कर देगा, तो 4x² - 3x+2 की पावर -2। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड फंक्शन जी ऑफ एक्स बन गया। ओके, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए फंक्शंस। अब सेकंड टास्क क्या होगा कि आपने डेरिवेटिव्स लेने। एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास इक्वल है -2x के, पावर रूल लग जाएगा -2 और x के, और जी प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास इक्वल है, इस पर भी पावर रूल लग जाएगा। 4t² है तो t² का 2t आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 8t - 3 इंटू टी है तो t का डेरिवेटिव 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, +2 है तो उसका डेरिवेटिव 0 है तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द डेरिवेटिव्स। लास्टली हमने प्लग इन करना है अपने जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव पे, विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स। अब एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास -2x है, तो -2 इंटू अब एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 4x² - 3x+2 की +2। तो ये आपके पास जी ऑफ एक्स है। ये -2 आपके पास एफ प्राइम के साथ आ गया, और एक्स जो है वो एफ प्राइम का इनपुट था, लेकिन यहाँ पे इनपुट जी ऑफ एक्स है तो हमने एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख दिया, टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स ये वाला, तो जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे आ गया 8t - 3। तो ओवरऑल आपके पास इसको अगर आप टी की फॉर्म में लिखें, क्योंकि आपका इनपुट जो है वो टी की फॉर्म में, तो जी ऑफ टी डेरिवेटिव जी ऑफ टी इज इक्वल टू -2, यहाँ पे एक्स ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में हम टी पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम सिर्फ टी लिख देंगे। टी इंटू ये वाला फैक्टर 8x - 8t - 3 टाइम्स 4t² - 3t+2। ओके, दिस इज द चेन रूल। ओके, सेकेंड वाले क्वेश्चन में मैं आपको एफ और जी बता देता हूँ, आपने चेन रूल खुद अप्लाई करना है।
ओके। सो एक तो ये अंदर वाली टीम, ये अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है इसको आप कह दें जी ऑफ एक्स 3x प्लस 10x, और जो बाहर वाला एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स उसको आप कह दें जो बाहर वाला एक्सप्रेशन को आप एफ फंक्शन कहते हैं विच इज़ 2 ऑफ साइन एक्स। ओके, अब आप इसको चेक करें, एफ कंपोज जी ऑफ एक्स विच इज़ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 3x प्लस 10x। अब एफ जो है वो अपने इनपुट पे क्या करता है, उसको साइन के आर्गूमेंट में दे देते हैं और साथ में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 10x दिस इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ये वाला। तो हमने एफ और जी आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपने एफ का डेरिवेटिव लेना है, जी का डेरिवेटिव लेना है, और उसके बाद वो फार्मूला जो हमने यूज़ किया है इस फार्मूले में आपने इसको यूज़ कर देना, तो यू विल हैव द डेरिवेटिव। ओके, सो दिस ट्यूटोरियल इज़ यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम। इसमें समरी के तौर पे मैं आपको दोबारा से सुनना, ख़त्म नहीं करेंगे अभी। इसमें एक लास्ट चीज़ है, चूँकि हमने ग्राफिकली देखा है उसको कि किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव का मतलब, किसी फंक्शन किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, और ग्राफिकली वो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप देता है। ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको ग्राफ गिवन हो और फिर ऑप्शंस में कई और ग्राफ्स गिवन हो, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपको ऊपर ग्राफ है आपने ऑप्शंस में डेरिवेटिव से ग्राफ गिवन है, तो आपने वो मैच करना है। तो ग्राफ्स को सिर्फ देखते हुए आपने डेरिवेटिव ग्राफ मैच करना है। तो उसको देखने के लिए हम पहले एक जियोजेब्रा पे एप्लेट है, हम उस पर डेरिवेटिव्स को चेक कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ओके, सो लेट मी फर्स्ट राइट अ फंक्शन विच इज़ एक्स स्क्वेयर। ओके, सो मैंने एक फंक्शन एक्स स्क्वेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पॉइंट लिया है, दिस पॉइंट इस पी, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं इसकी स्लोप चेक करता हूँ, ठीक है। अब आप इसकी स्लोप चेक करें कि इस पॉइंट पे ये ऊपर से ऐसे नीचे को लाइन आ रही है, तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप देखें, आपके पास ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, तो आपका स्लोप जो है वो कम नेगेटिव हो रहा है, कम नेगेटिव हो रहा है। और जैसे जैसे ये यहाँ आके बिल्कुल ज़ीरो पे हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप आपका बेसिकली जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी एक्स एक्सिस के, तो उसकी हॉरिजॉन्टल होने की वजह से उसका जो स्लोप होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए जो ब्लू लाइन है वो ज़ीरो पे कर रही है बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद जैसे हम आगे आगे मूव कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऊपर को जा रहा है, क्योंकि आगे को जाएंगे तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, तो इसने ऊपर मूव कर देना है। इस तरह पीछे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो रहा है, और नीचे को जाएंगे तो ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो एक्स स्क्वेयर का अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो वो आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2x आता है, यानी कि एक लीनियर फैक्टर है, तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इस तरह। ओके, अगर मैं फंक्शन चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ साइन ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने साइन ऑफ एक्स फंक्शन लिया। ओके, अब इस केस में अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, अब दिस ब्लैक वन इज़ माई पॉइंट। अब इस पे देखें, आपका जो है वो ग्राफ नीचे को ऐसे जो इसकी टेंजेंट लाइन है वो स्लोप उसकी नेगेटिव होगी, तो इसका जो वैल्यू है वो ये नीचे इसकी नेगेटिव वैल्यू है, राइट। अब जैसे जैसे मैं इसको आगे मूव करूँगा, इसकी जो नेगेटिविटी है स्लोप की वो कम होती जा रही है, क्योंकि ये इवेंचुअली यहाँ आके इसने ज़ीरो हो जाना होगा यहाँ पे इस जगह पे आके, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम नेगेटिव होती जाएगी। तो ये स्लोप वाला जो डेरिवेटिव वाला जो है वो ऊपर को मूव कर रहा है, क्योंकि वो कम नेगेटिव हो रहा है। और जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, ये इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आके स्लोप इसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो ये ब्लू लाइन जो है शुड रीच इज़ एक्स एक्सिस। ओके, तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, लेट्स सी। और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचूँ, ये देखें ये हमारा स्लोप जो है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो मीन दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपका स्लोप जो है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल है।
स्लोप ज़ीरो है, टेंजेंट लाइन आपको हॉरिजॉन्टल है लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब यहाँ से ऑनवर्ड आपकी जो है वो स्लोप जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो रही है, तो हम ऊपर को मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आके जहाँ पे स्लोप इंक्रीज़ होना ख़त्म हो गई है, वहाँ पे आपका जो है वो वन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है वो आपका स्लोप डिक्रीज़ होना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसको फिर से मूव करेंगे तो आपका स्लोप डिक्रीज़ होना शुरू हो रहा है। तो देखें आपका जो ब्लू वाली लाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आ रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जैसे ही मैं इस पीक पे पहुंचूंगा तो स्लोप ज़ीरो पे पहुंच गई है, क्योंकि स्लोप अब स्ट्रेट लाइन हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है। इसके बाद फिर से ऑनवर्ड आप इसको इस तरह मूव करेंगे तो ये आगे को मूव कर रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए मैं अगर इसको प्ले कर देता हूँ तो आपके पास ये खूबसूरत सा वो बन रहा है। सो इसी कि हमारे पास साइन फंक्शन था और उसका ग्राफ जो है इट्स द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज़ कॉज फंक्शन। तो आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन जो है वो डेरिवेटिव का ग्राफ बना रहा है, हर पॉइंट पे उसकी स्लोप बता रहा है उसकी टेन लाइन की। तो वो इस तरह से आपके पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर रहे हैं। तो दिस इज़ द ब्लू लाइन इज़ द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन, और ब्लैक लाइन जो है वो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन फंक्शन का ग्राफ है। ओके, वी कैन ऑल्सो चेंज द ग्राफ हेयर। मे बी हम इसको पहले पॉज कर दें। तो वी हैव लेट्स से एक्स रेज टू पावर 3 and let's say okay, sorry, x raised to power 3 divided by 2x minus 8। ओके, सो हमने एक फंक्शन लिया, अब उसका ग्राफ इस फंक्शन का ओके, सो हमारे पास दिस ब्लैक लाइन इज़ द फंक्शन। तो अब आप इसको देखें, इनिशियली हम इसको वैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे आप देखें इसको, तो यहाँ से आपका ग्राफ जो है वो नीचे को आ रहा है, तो स्लोप जो है वो इस फॉर्म में नेगेटिव को होगी, क्योंकि वो नीचे को इस तरह का टेंजेंट लाइन है। और जैसे जैसे यहाँ से हम आगे को मूव करेंगे तो स्लोप जो है वो टेंजेंट लाइन थोड़ी सी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती जा रही है, तो वो टेंजेंट लाइन जो है वो ऊपर को, उसका ग्राफ जो है वो ऊपर को मूव करना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल यहाँ ज़ीरो पे वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, तो ग्राफ भी डेरिवेटिव भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। और फिर इससे ऑनवर्ड जो है वो फिर से नेगेटिव की तरफ ही जा रही है, ऊपर को नहीं हो रही, तो ये यहाँ से फिर वापस नेगेटिव को मूव करना शुरू कर देगी। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं जैसे जैसे पीछे जा रहा हूँ ग्राफ जो है वो नेगेटिव है, इससे मैं जब नीचे को आ रहा हूँ ग्राफ मेरा ऊपर को आ रहा है, यानी कि इसकी नेगेटिविटी कम हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैं ज़ीरो पे पहुँचा, ग्राफ ज़ीरो पे पहुँच गया। अब जैसे मैं आगे जा रहा हूँ नेगेटिविटी फिर से बढ़ना शुरू हो गई है, तो ग्राफ भी मेरे नीचे को जा रहा है, इसी ग्राफ भी नीचे को जा रहा है। तो ये ग्राफ नीचे को जा रहा है, ग्राफ क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव बता रहा है, क्योंकि इसमें स्लोप जो है वो हर पॉइंट पे नेगेटिव ही है, स्लोप नीचे को ही जा रही है, तो स्लोप नेगेटिव है, तो इसलिए डेरिवेटिव का ग्राफ भी नेगेटिव है। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम ये पीडीएफ पे जो क्वेश्चंस हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको गिवन क्या है आपको इस साइड पे जो है वो ग्राफ्स गिवन है फंक्शंस के, ठीक है। इस साइड पे फंक्शंस के ग्राफ गिवन है, और इस साइड पे जो है वो डेरिवेटिव्स के ग्राफ गिवन है। आपने सिंपली क्या करना है कि हर फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं से ढूंढ के उसको मैच कर देना है, ठीक है। ओके, अब अभी के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक देखें, पहले फंक्शन को हम इस फंक्शन ए को देखते हैं किसी भी पॉइंट पे चूँकि 0 से 1 तक इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो कांस्टेंट होती है, तो 0 से 1 तक हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 0 से 1 तक हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, और ये इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर को, तो कांस्टेंट नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 1 है तो पॉजिटिव है। ओके, अब इस पॉइंट पे सडनली ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया सडनली, और वो नीचे को जा रहा है, और दिस इज़ द कांस्टेंट और वो नेगेटिव में, ठीक है। तो ये -1 है यहाँ पे, तो इसका जो है वो हमारे पास ग्राफ जो है वो यही है, यानी कि पहले वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव ग्राफ है वो इसका पहला पार्ट, ठीक है। अब सेकेंडली में देखते हैं, 2 पे आपका लेट्स से 2 से आप यहाँ तक आ रहे हैं तो स्लोप आपकी ऐसे, ठीक है। 2 पे वो सबसे मैक्सिमम थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है स्लोप, नेगेटिव कम हो रही है, और 1 पे आके वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है, 0 हो गई है। तो आपने ऐसा ग्राफ ढूंढना है जो 2 पे नेगेटिव था, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, 2 पे नेगेटिव था और 1 पे आके वो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 0 से है,
ओके सो ज़ीरो पे ही हमने देखना है, ज़ीरो पे स्लोप जो है वो नेगेटिव थी। ओके ज़ीरो पे हमने देखना है, ये ज़ीरो पे ज़ीरो है तो ये नहीं है, ये ज़ीरो पे पॉजिटिव है ये भी नहीं है, ये ज़ीरो पे नेगेटिव है। यू सी, तो हमारे पास ज़ीरो पे नेगेटिव था और ये इसको देखेंगे जैसे जैसे हम ज़ीरो से वन की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ ज़ीरो से वन की तरफ मूव कर रहे थे तो हमारा स्लोप जो है वो कम होता होता ज़ीरो हो रहा था। ज़ीरो से वन की तरफ मूव करें तो हमारा स्लोप कम होता होता यहाँ पे वन पे आके ज़ीरो हो गया, और फिर उसके बाद हमारी स्लोप जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई, क्योंकि टेंजेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ती जा रही है, तो ये स्लोप बढ़ती जा रही है। तो बी का जो है वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो फोर्थ है। ओके, अब सी के लिए देखें, ज़ीरो पे बिल्कुल इसका टेंजेंट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस के, तो ज़ीरो पे इसकी स्लोप कम है। अब ज़ीरो से थोड़ा सा आगे को मूव करेंगे तो स्लोप जो है वो इधर को बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर एक पॉइंट आएगा सेंटर पे जिसके बाद जो है वो स्लोप कम होना शुरू हो जाएगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। पहले कम थी फिर ज़्यादा होगी, फिर एक पॉइंट आया उसके बाद से कम होना शुरू होगी और फिर यहाँ पे ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो से स्टार्ट हुई, वन पे जाके ज़ीरो होगी, लेकिन बीच में जो है वो एक बढ़ती गई और फिर कम होना शुरू हुई। तो ये ज़ीरो से वन तक इस तरह का होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा यहाँ पे ये ग्राफ पड़ा हुआ है, ज़ीरो से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एक पॉइंट पे आके कम होना शुरू हो गया, फिर वन पे आके ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ से ऑनवर्ड आगे हॉरिजेंटल थी, फिर नेगेटिव में आई, नेगेटिव में कम हुई, फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे वो मैक्सिमम थी, उसके बाद फिर से वो जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई और फिर ज़ीरो पे आगे टू पे आके वो फिर से ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पे वो कम हुई, यहाँ पे एक्सट्रीम, और फिर आगे मूव तो टू पे ज़ीरो। तो सी वाले का जो है वो सेकेंड है। उसके बाद डी वाले के पास, डी के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, वो थ्री है, तो वो इसका थ्री वाला होगा। कैसे होगा, ज़ीरो पे ग्राफ मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे वन और उसके बीच में जो है वो ज़ीरो हो रहा है, फिर इससे यहाँ तक फिर से डिक्रीज़ हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे और टू पे वन पे जो है वो मैक्सिमम है। तो पहले मैक्सिमम था, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ टू वन ज़ीरो वन के बीच में ज़ीरो हो गया और फिर वन पे जो है वो मैक्सिमम हो गया। फिर इसके बाद कम होना शुरू हुआ है, यहाँ पे फिर से मैक्सिमम और फिर यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है, यहाँ से कम होना शुरू हुआ है, यहाँ पे ज़ीरो और फिर यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है। ओके, तो दिस इज़ द थर्ड इज़ द ग्राफ डेरिवेटिव, द थर्ड इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन डी, उसके डेरिवेटिव का ग्राफ। ओके, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नो। और हर जितने भी पास्ट मिड हैं हर एक में इस तरह कोई क्वेश्चन लाजमी गिवन है एमसीक्यूज़ में, तो अगर आपको ये समझ आ गई है तो मे बी दिस विल बी हेल्पफुल। ओके ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह जो अगला ट्यूटोरियल हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें we'll do implicit differentiation, एंड उसके बाद implicit differentiation के बाद we'll have another thing that is related rates, and we will do some question जिसमें हमने equation of tangent line find करनी है, तो tangent lines। तो ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और अभी के लिए थैंक यू। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ DM मी, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।